اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں عطیہ بھی آ گئی الحمدللہ. چلیں اب سٹارٹ کریں. کون پڑھے گا سب سے پہلے؟ عارفہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی جی میں پڑھتی ہوں. پارٹ 9 ہے آج سورہ یوسف کے متعلق. سورہ یوسف نہیں، آئی یوسف علیہ السلام کے متعلق. چلیں سٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موعظۃ السجن ودخل یوسف السجن. ایک منٹ ہے، سجن کوئی چیز نہیں ہے اردو میں. سجن سوری آپ کی آواز آج مجھے کلیئر نہیں ہو رہی ہے، میں پتہ نہیں. تو کسی اور کو دے دوں پڑھنے کے لیے؟ جی جی آپ دے دیں. تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا آپ نے جو کہا نا، تو میں بالکل نہیں سن پائی ہوں. شمیم آپ پڑھ لیجئے. جی ابھی ایک کھلا ہوا ہے. Yeah, 1 minute. Hold on a second. Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mo'izatus Sijni. سجنی ٹھیک ہے. Yeah. سجن Sermon of the prison. ہاں سرمن بھی کہتے ہیں، ودخل. ایڈمونیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں واعظ اور نصیحت. Right. Okay. ودخل Yusuf السجن. And Yusuf entered the prison. وعرف أهل السجن جميعا. And all the people of prison knew him. Knew him. Knew. Knew Anna Yusufa Shabun Karimun. That Yusuf is noble youth. Anna Yusufa indahu ilmun adimun. And that Yusuf ke paas, Yusuf had the great knowledge. Wa anna Yusufa fi sadrihi qalbun rahimun. And that Yusuf had a kind heart. No, in his chest, in his chest had a kind heart. Wa ahabba ahlus sijni Yusufa. And the people of the prison loved Yusuf. Wa akramuhu. And they akramuhu. And they respected him. Wa farihan nasu bi Yusufa. And the people were happy with Yusuf. Wa addamuhu. And they respected him. اوکے جزاک اللہ خیر. چلیں یہ کرتے ہیں اب موعظۃ السجنی. اب یاد رکھیے عارفہ آپ جب پڑھ رہی تھی نا آپ نے سجنی بولا تھا. اوکے یہ جب آپ کو بتایا تھا کہ جب شدہ اوپر ہوتا ہے، تشدید جس کو ہم کہتے ہیں یا شدہ کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک لائن ہے، اس کے نیچے لائن ہے، سین کے تو اوپر ہے لیکن شدہ کے نیچے، اس کا مطلب یہ کسرہ ہے. یاد رکھیے سب لوگ، یہ میں نے آپ کو لکھ کر بھی بھیجا تھا، پلیز یاد رکھیے آئندہ کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ کے مصحف میں ایسا نہ ہو، اگر آپ اردو والا مصحف پڑھ رہی ہیں، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والا پڑھ رہی ہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ عربی مصحف پڑھیں گی تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ شدہ کے نیچے اگر کسرہ ہے، بے شک وہ سین کے اوپر ہے لیکن اٹ از اے کسرہ، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے فتحہ. تو موعظۃ السجنی، سجنی نہیں سجنی. سجن کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا پریزن یا قید خانہ یا جیل، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے نا. اور موعظہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں واعظ اور نصیحت، یعنی ایڈمونیشن، کسی کو واعظ دینا، کسی کو نصیحت کرنا. سرمن بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرمن دینا، کسی کو واعظ اور نصیحت کرنا. موعظۃ السجن کا مطلب ہے the sermon یا ایڈمونیشن آف دا پریزن. اگین یہ ایک اضافہ ہے جس میں موعظۃ مضاف ہے اور سجن
मुदाफ इलैहि है। वदखल यूसुफ सिजना, बिल्कुल ठीक पढ़ा था। शमीम ने कहा था वदखला एंड एंटर्ड यूसुफ एंटर्ड असिजना, सिजन में एंटर यानी वो कैद खाने में या जेल में एंटर हुए, प्रिजन में एंटर हुए, एंड यूसुफ एंटर्ड द प्रिजन। अब आप देखें दखला यूसुफ इज द सब्जेक्ट, यूसुफ एंटर हो रहे हैं तो उसमें यूसुफा नहीं है, यूसुफू है, ठीक है। और सिजना है, क्यों सिजना है? बिकॉज इट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड। सिजना यानी सिजन में दाखिल हो रहे हैं। वदखल यूसुफ सिजना एंड यूसुफ एंटर्ड द प्रिजन वअरफ अहलु सिजनी जमीअन वअरफा एंड न्यू, ये भी ठीक बोला है शमीम ने सब। वअरफ अहलु सिजनी जिस तरह शमीम ने ट्रांसलेट किया द पीपल इन द प्रिजन, उसको आप इजीली ये भी कह सकते हैं द प्रिजनर्स या इनमेट्स कह सकते हैं, या प्रिजनर्स उनको कह सकते हैं जो जेल के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं। वअरफ अहलु सिजनी जमीअन एंड ऑल जमीअन का मतलब ऑल ऑफ देम, एंड ऑल ऑफ द प्रिजनर्स न्यू, क्या उनको पता था? अन्ना दैट यूसुफा शाबुन करीमुन, दैट यूसुफ इज शाबुन, किसको कहते हैं? शाबुन का मतलब है कोई यूथ, कोई यंगस्टर, कोई यंग मैन, यानी जवान, जैसे हम कहते थे, हम उर्दू में कहते हैं जवान। करीमुन क्या है? नोबल या ऑनरेबल या रिस्पेक्टेड, जो भी आप कहना चाहें। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड यूसुफ एंटर्ड द प्रिजन एंड ऑल द प्रिजनर्स न्यू दैट यूसुफ वाज अ नोबल यंग मैन। यूथ भी कह सकते हैं, यंग मैन ज्यादा अच्छा लगता है, कि यूसुफ एक ऑनरेबल, एक इज्जत वाले, अच्छे, नोबल, करीम, वो जवान है, ठीक है। वअन्ना यूसुफा इंदहु इल्मुन अज़ीमुन, वअन्ना एंड दैट यूसुफ इंदहु, मतलब उसके पास है, हैड, यूसुफ हैव या हैड कहेंगे, लेकिन चूंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो हम उसको हैड कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वअन्ना यूसुफा इंदहु इल्मुन अज़ीमुन, एंड दैट यूसुफ हैड ग्रेट नॉलेज। इल्म क्या है? नॉलेज, और अजीम क्या है? ग्रेट। आप पढ़ चुके हैं, अजीम आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं, इल्म भी आपको पता है। वअन्ना यूसुफा फी सद्रिही क़ल्बुन रहीमुन, एंड दैट अन्ना यूसुफा एंड दैट यूसुफ फी सद्रिही, इन हिज चेस्ट। सदर क्या होता है? सीना, चेस्ट, और सदरुहु क्या होता है? हिज चेस्ट। यहाँ चूंकि फी आ गया है तो फी की वजह से वो क्या बन गया? सदरिही, फी सदरिही, वैसे सदरुहु होगा ना, तो सदरिही कल्बुन रहीमुन, कल्ब क्या होता है? हार्ट, अ हार्ट, रहीमुन मर्सीफुल, रहम वाले, उसके यूसुफ अलैहिस्सलाम के सीने में एक रहम करने वाला दिल है। वअहब्ब अहलु सिजनी यूसुफ व अकरमुहु, वअहब्ब या पढ़ चुके हैं पहले, अहब्बा युहिब्बु फॉर्म 4, अहब्बा युहिब्बु loved, okay। वअहब्बा and loved अहलु सिजनी and the prisoners, अहलु सिजन यानी the prisoners or the inmates or the people in the prison loved Yusuf, वअकरमुहु and they honored him and they respected him, ठीक है। वफरिह अन्नासु बियूसुफ वअज़्ज़मुहु, वफरिह and the people, फरिह अन्नासु and the people were happy बियूसुफ with Yusuf, वअज़्ज़मुहु और उसको अज़मत, उनको अज़मत देते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे। और ये फॉर्म 2 है, याद रखिए, अज़्ज़मा युअज़्ज़िमु, अज़्ज़मा युअज़्ज़िमु, लिख लें अपने पास फॉर्म 2। इसका फॉर्म होता है फ़अला युफ़अइलु, ठीक है। अब आपको बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अज़्ज़मा युअज़्ज़िमु, and the people वअज़्ज़मुहु and they respected him, ठीक है। अच्छा, आगे कौन पढ़ेगा? सबा आप पढ़ेंगी? सबा जी, एक सेकेंड, और किसी को बोलूं? आप किसी और से पूछ लीजिए प्लीज। अच्छा, कौन? अतिया, would you like to read? ओके आंटी, अस्सलाम वालेकुम। या ودخل معه السجن ورجل नहीं है। वदखल मअ सिजना رجلا रजुलानी। पहले इतना कर लीजिए ट्रांसलेट। ودخل معه entered معه auntie with him, okay. And they entered the prison. Okay. Rajulani. I'll do it.
just read the whole Okay. thing. Okay. وقص عليه رؤياهما قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا और एक और भी पढ़ लीजिए. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا فأكل الطير منه. تأكل أوكي تأكل الطير منه. Okay, जज़ाकल्लाह खैर. Let me just do this, ठीक है ना. वदखल आपने देखे डायरेक्टली कुरान से, इसीलिए जब अतिया पढ़ रही थी तो अतिया ने उसको पूरी तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश की. जब कुरान का आता है तो चाहिए हमको ये, जिस तरह नौरीन कहती हैं कि कुरान का जब भी आए तो आप कोशिश करें कि आप अपनी तजवीद को साथ साथ ठीक करती जाएं. माशाल्लाह अतिया कुरान क्लास में भी आया उसी में, इसलिए माशाल्लाह शी इज लर्निंग तजवीद रूल्स, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा. वदखला, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना दखला, ये दखला नहीं होता, दखला होता है. जब हम कुरान को पढ़ लेते हैं खा इज हैवी. वदखला मअहु सिजना रजुलानी. वदखला एंड एंटर्ड, कौन एंटर हुआ? मअहु विद हिम. किनके साथ एंटर हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ. हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे कि वो प्रिजन में एंटर हुए, और उसके साथ ये लिखा हुआ है कुरान में कि उनके साथ कौन एंटर हुए प्रिजन में? रजुलान. रजुलान क्या होता है बताइए कोई? Two men. तो एंड दखला, तो अब दो आदमी जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ प्रिजन में दाखिल हुए. वक़स्सा, क़स्सा क्या होता है? And narrated. हाँ, लेकिन क़स्सा क्यों है? क़स्सा नरेट, क़स्सा यक़ुस्सु होता है ना, क़स्सा यक़ुस्सु. तो क़स्सा क्यों है यहाँ पर? अलिफ क्यों है? Oh, because both of them. Exactly. Rajulani waqas, Yeah. both of them entered and both of them narrated. Waqassa alayhi, यानी किसको बताया? To Yusuf, on Yusuf या upon Yusuf, उन्होंने क्या बताया? रुया हुमा. रुया क्या है? The dream. The dream. और हुमा क्या चीज है? Their dream. Both of their dreams. दोनों की dreams, exactly. तो अब इतना मैं आप बताती हूँ. वदखल मअहु सिजना रजुलानी, and two men entered the prison with him. वक़स्सा, and both of them narrated alayhi, to him, रुयahuma, their dreams. यानी दोनों ने अपने अपने dreams बताए. उसके बाद उन्होंने अपने dreams क्या बताया? क़ाला अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा. क़ाला अहदुहुमा. अहदुहुमा का क्या मतलब है? अहद क्या? One of them. किसने? नाहिद ने, अस्मा ने बोला. हाँ. तो ये काला अहदुहुमा, तो उनमें से एक ने कहा. And said one of them. ठीक है ना? अहदुहुमा, one of them. अहद का मतलब एक, हुमा का मतलब टू. उन दोनों में से एक ने कहा. क्या कहा? अपने ड्रीम के बारे में कहा. इन्नी, बेशक मैं, indeed I, अरानी, I see. अरा का क्या मतलब हुआ? I see. लेकिन ये किससे शुरू हुआ? फॉर्म 4 है ये. फॉर्म 4 है ऑफ रआ. रआ क्या होता है? रआ का क्या मतलब है? To see. देखना. See, देखना. एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? रआ. देखा. Saw. He saw. He saw. He saw कैसे कहेंगे? रायता. रआयता कहाँ से गया? र, राअत. रात. र, रआ, राअत. रआयत और रआयता क्या? You see. You see. और रआयतु क्या होता है? They see. I see. I see. Sorry. I see. भूल गए आप लोग यार. पीछे जाएं प्लीज. एक तो आप लोग ये करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है. वो कहते हैं ना बिनती है, हिंदी में कहते हैं बिनती है, मेरी ये बिनती है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ये पढ़ लिया करें ना, घर जाके प्लीज प्लीज प्लीज, इससे पूरा नहीं होगा कि आप क्लास में पढ़ें. आप घर जाके इसको दोबारा पढ़ें और बगैर मुझे सुने पढ़ें. इसको पहले पूरा पढ़ें और खुद ट्रांसलेट करें जो आप सुन के गए थे. उसके बाद फिर आपको जो नहीं याद आ रहा है फिर आप वापस से लगाएं और उसको पढ़ें और उसको सुने. और जब आप कुरान पढ़ रही हो तो पढ़ते पढ़ते हर दफा नोट करें कि अभी हुमा क्यों है, अराइता क्यों है, अराइतु क्यों है, रआइतु क्यों है,
تو یہ سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اندر ایبزارب کرتی جائیں گی آپ لوگ. اس طرح خالی سن سن کے اور ایک کلاس اٹینڈ کر کے نہیں ہوگا. عربک سیکھنا آسان نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ لیں گی. تو اب کیا تھا, انی انڈیڈ آئی ارانی آئی سی آسرو. آسرو کیا چیز مطلب کسی کو پتا ہے؟ اسما آپ کو پتا ہے, آپ سعودی میں شاید رہی ہیں. آسرو کا کیا مطلب ہے؟ Squeeze. اسیر کا کیا مطلب ہے؟ Grapes. اسیر. Pressing. Press. Pressing. اسیر سے بتاتی ہوں. اسیر کا مطلب ہے Juice. اسیر البرتقال, اسیر الفواکہ. آپ جب جاتے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے, تو وہاں لکھا ہوتا ہے نا اسیر. اسیر مینس جوس. لیکن سیرو کا کیا مطلب ہے؟ ٹو سکویز. جب آپ سکویز کر کے فروٹ سے جوس بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جوس بنائے یا وائن بنائے جو بھی ہے. سیرو خمرہ. اب خمرہ کیا چیز ہے؟ وائن. یعنی کہ اب وہ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ قال احدہما, ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں, one of them said indeed I see myself, arani I see myself squeezing fruits. فروٹ کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے, بٹ squeezing fruits and making wine, مطلب اس کا یہ ہے. تو جس طرح آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں and squeezing, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں squeezing fruits and making wine اور making wine, لیکن squeezing کا لفظ ہے اس میں آسرو, لیکن مطلب یہ پورا بنتا ہے. اگر آپ لکھنا چاہیں اپنے پاس لکھ لیں, جیسے میں نے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں میں نے squeezing لکھا اور wine لکھا, اور بریکٹس میں squeezing اور wine کے بیچ میں لکھا ہے fruits and making, squeezing fruits and making wine. کہ میں یہ دیکھتا ہوں, میں نے خواب میں یہ دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا کہ میں فروٹ کو سکویز کر رہا ہوں اور وائن بنا رہا ہوں. یہ اس نے خواب میں دیکھا. وقال الآخر, and the other, وقال الآخر, sorry, and the other said, قال یعنی said, he said, آخر, and the other one said, دوسرے آدمی نے کیا کہا, انی ارانی indeed I see احملو. احملو کا کیا مطلب ہے؟ I carry. آپ کو پتا ہے نا حمل کیوں کہتے ہیں ہم؟ بچہ جب کیری کر رہی ہوتی ہے ماں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حاملہ ہے. حاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ حمل ہے. حمل کیا ہے؟ وہ کیری کر رہی ہے. کس کو کیری کر رہی ہے؟ بچے کو کیری کر رہی ہے. یہ سب عربک کے ورڈز ہیں جو اردو میں آئے. یہ حاملہ ہے. وقال الآخر انی ارانی, اور دوسرے نے کہا, the other said انی ارانی I see احملو, I see myself احملو carrying فوق رأسی. فوق کیا ہوتا ہے؟ فوق کا تحت, On. above اور on. رأسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رأس کیا ہوتا ہے؟ My head. my head. راس کا مطلب head ہے, رأسی کا مطلب my head. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں, وہ قال الآخر, and the other said انی ارانی I see myself احمل carrying فوق راسی, on my head یا upon my head یا above my head, کس چیز کو؟ خبزن. خبزن کیا ہے؟ bread. bread, روٹی. bread بھی کہہ سکتے ہیں, روٹی بھی کہہ سکتے ہیں. تأکل الطیر منہ. تأکل کا کیا مطلب ہے؟ تأکل ویسے کیا مطلب ہے؟ وہ کھاتی. تاکلو, you eat. اکلا تاکلو, you eat, she eats. لیکن یہاں کیا بولے؟ تأکل الطیر. طیرو کے لیے یوز ہو رہا ہے, تو طیرو کیا چیز ہے؟ طیرو کا مطلب ہے birds. کھا رہے ہیں, تو یہاں پر کیوں یوز ہوا ہے؟ برڈس کے لیے فیمینن سنگولر یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, یاد آ گئی یہ رول. تأکلو, یأکلو نہیں کہیں گے, تأکلو کہیں گے. برڈس ایٹ. تأکلو برڈس منہ, فرام اٹ. یہ پورا ریپیٹ کرتی ہوں. and the other said indeed I see myself carrying bread on my head, the birds are eating from it. سمجھ میں آ گئی پوری بات. اور دوسرے نے کہا, میں دیکھتا ہوں, بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں سر کے اوپر روٹی لے جا رہا ہوں, اور اس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں, پرندے کھا رہے ہیں, چڑیاں کھا رہی ہیں. یہ سورہ یوسف کی دونوں آیتیں ہیں, آپ دیکھ لیں. سورہ یوسف میں 36 آیت ہے, اور اس میں یہ دونوں آئے ہیں پورا. اب کون پڑھے گا نیکسٹ؟ میں پڑھ لوں. کون؟ آسما. ہاں, پڑھ لیجیے. وسأل یوسف عن التأویل. آسما رکیے, آپ نے کہا سأل. سأل یوسف عن التأویل. And they asked Yusuf about interpretation. اور the interpretation. ایک خاص چیز کی انٹرپریٹیشن ہے, ڈیفینیٹ ہے. وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا
bitawili ruya. And Yusuf was knowledgeable for interpretations of dreams. The dream. अब ठीक है, about interpretation ठीक है. Wakana Yusufu Nabiya Minal Ambiyai. And Yusuf was one of the prophets from the prophets. एक और लाइन पढ़ लीजिए. Wakana Nasu fi zamanihi ya'buduna ghayrallahi. एक और लाइन. And the people were These are in his time make ibadat to other than Allah. وَوَدَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ كَثِيرَةً مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. وَوَدَعُوا याद है आपने हदीस का कोर्स किया था? नहीं किया होगा शायद. वदू क्या कहते हैं? मौदू किस चीज को कहते हैं? मौदू हदीस जो फैब्रिकेटेड हदीस होती है, किसी ने घड़ी हुई हदीस. ضعيف. They had fabricated arbaban kathiratan. Many with them, together with themselves. नहीं, अरबाबन होता है प्लूरल. चलिए मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? Gods, right? Gods or Rab. है ना, इलाहन और अरबाबन और ये गॉड्स एंड लॉर्ड्स होता है ना, ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं. वसअला यूसुफा अनित तावीली. ये मैंने इसलिए आसमा को रोका था क्योंकि उन्होंने सअला कहा था. सअला मतलब ही आस्क्ड. सअला का मतलब है बोथ ऑफ देम आस्क्ड. याद है ना, जब अलिफ आ जाता है तो जैसे फअला फअला फअलू, इसको याद रखा करें. फअला फअला फअलू. जैसे अभी मैंने शमीम को भी पूछा था या सबा को पूछा था, शमीम को शायद पूछा था, वसअला यूसुफा अनित तावीली. नहीं, आई थिंक उससे पहले शायद किसको, सबा को पूछा होगा, याद नहीं है. चले, जिससे भी पूछा था, अतिया को व्हाटएवर गलत कह दिया हो तो माफी चाहती हूँ. वसअला एंड दे बोथ आस्क्ड. बोथ ऑफ देम आस्क्ड यूसुफा. दे आस्क्ड यूसुफ अनित तावीली, अबाउट द इंटरप्रिटेशन. तावील का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन. ख्वाबों की, जो हम कहते हैं ना, ख्वाबों की तावील, जो ख्वाबों की ताबीर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ताबीर, लेकिन ताबीर अरबिक में नहीं है. ताबीर अरबिक में मतलब ये कुछ और चीज बन जाती है, तो इसलिए हम तावील कहेंगे. तावील इंटरप्रिटेशन है. वसअला यूसुफ अनित तावीली. और उन दोनों ने यूसुफ से तावील ख्वाब की, अपना ख्वाब नहीं लिखा, बस इंटरप्रिटेशन पूछा, तावील पूछी. तो सअला बोथ ऑफ देम है, सिंगुलर सअला है, तावील इंटरप्रिटेशन है, और दोनों ने पूछा. वकाना यूसुफु आलिमन बितावील रुया. वकाना एंड यूसुफ क्या था? नॉलेजेबल. आलिमन नॉलेजेबल. अच्छा, ये आलिमन क्यों है, आलिमुन क्यों नहीं है? इसम काना. बिल्कुल, तो वो काना की वजह, इस्म काना नहीं है, खबर काना है. इसम काना इज यूसुफु. ओके, आलिमन इस खबर काना. ठीक है, खबर काना हमेशा याद रखिए. काना और इन्ना ऑपोजिट है, दिमाग में बिठा लें. इन्ना के साथ हम कहते हैं ना, आप कुरान का एक सेंटेंस याद करें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर. हमेशा ये आएगा ना, इन्नल्लाह, हमेशा याद रखिए. तो इन्ना के साथ जो इसम आएगा, इट विल ऑलवेज बी मंसूब. लेकिन काना के साथ जो आएगा उसका ऑपोजिट होगा. द इसम विल बी मरफू एंड द खबर विल बी मंसूब. ये आप एक ट्रिक याद रख लें हर चीज की. मैं तो इसी तरह करती हूँ. वकाना यूसुफ आलिमन एंड यूसुफ and Yusuf was knowledgeable bitawil ru'ya, about the interpretation about the, अब जो भी कहना चाहिए इन कह लें. and Yusuf was knowledgeable in interpreting dreams. यूसुफ जो थे वो ख्वाब की ताबीर बताने में, तावील बताने में उनको नॉलेज था, वो आलिम थे उसमें, उनको उसका नॉलेज था. और कैसे उनको नॉलेज था, किसी ने आप बता सकती हैं? इट्स नॉट रिलेटेड टू योर अरबिक, लेकिन क्यों नॉलेज था उनको? Because वो नबी थे. Because Allah subhanahu wa ta'ala gave him the power to interpret the right. तो याद रखिए कि जब हम
और किताबें पढ़ने जाते हैं ना, ड्रीम इंटरप्रिटेशन किया ना, बड़े खुश पढ़ते हैं, इसने लिख दिया, उसने लिख दिया, वो सब उन लोगों ने मिथ्स पे बनाए हुए होते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन लोग नहीं कर सकते, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। और अल्लाह की तरफ से ये गिफ्ट जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में दे दिया कि मैंने उनको तावील अल अहादीस, ड्रीम्स की भी और अहादीस मतलब कुछ बातों की भी इंटरप्रिटेशन अल्लाह ताला ने उनको सिखाई थी। ये स्पेशल गिफ्ट था। तो जो आप इतनी सारी किताबें अगर पढ़ भी लेंगे और आप किसी सो कॉल्ड आलिम के पास भी चले जाएंगे, आमिल के पास भी चले जाएंगे, नुजूमी के पास चले जाएंगे, मैंने ये ख्वाब देखा, तो आप सोच लें उस ख्वाब और उसकी इंटरप्रिटेशन की क्या हकीकत है। आपको पहले ही बताया था ड्रीम्स 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, अच्छे ड्रीम्स, एक होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं, जो बुरे ड्रीम्स, एक होते हैं जो कंफ्यूज ड्रीम्स होते हैं, जो हम किसी वक्त भी देख लेते हैं, जो दिन को सोचा वो रात को ख्वाब में आ गया। तो ड्रीम्स को इतनी बहुत इंपॉर्टेंस ना दिया करें, अच्छा ड्रीम देखें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, लेकिन ये मत सोचें कि अभी मैंने ड्रीम में कुछ देख लिया। जैसे पाकिस्तान में कोई ना कोई ड्रीम देख लेता है, हर रोज यूट्यूब पे आ रहे होते हैं और हर रोज आ रहा होता है फलानी ये ड्रीम देख लिया, उसका ये, इसका ये, उसको कोई आप लिफ्ट ना कराएं उन चीजों का। ड्रीम देखने से कोई शरिया बदल नहीं जाती है, ड्रीम देखने से कोई अहकाम हम पे लाजिम नहीं हो जाते हैं कि ये चीज पढ़ लें इससे ये कोविड चला जाएगा, ये चीज पढ़ लें इससे तमाम आफतें चली जाएंगी, ये ड्रीम से नहीं होती हैं। अच्छा याद रखिएगा, ये बिसाइड्स द पॉइंट था, मैं टेंजेंट पे गई थी। तो वकाना यूसुफ, एंड यूसुफ वाज नॉलेजेबल in interpreting dreams. वकाना यूसुफ नबिय्यम मिनल अंबियाई, इसका बहुत अच्छा ट्रांसलेशन इन्होंने किया था, आई थिंक आसमा कर रही थी, एंड यूसुफ was a prophet from the prophets, ठीक है ना, मतलब तो यही है। लेकिन जब ये एक एक्सप्रेशन है अरबों में, अरबिक स्टाइल है ये, कि he was a prophet from the prophets, काना यूसुफ नबिय्यम मिनल अंबियाई। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इस तरह नहीं बोलेंगे, जब हम आम बात करेंगे हम कहेंगे यूसुफ was one of the prophets, was a prophet from the prophets, अरबिक स्टाइल, याद रखें। लेकिन इंग्लिश में जब बोलेंगे यूसुफ was one of the prophets, यानी प्रॉफिट्स में से एक प्रॉफिट थे। इंग्लिश लफ्ज आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। वकान अन्नासु फी ज़मानी यअबुदूना गैरल्लाह, वकान अन्नासु एंड वकान अन्नासु एंड द पीपल इन हिज टाइम, और फिर चूंकि ये यअबुदूना आ गया, प्रेजेंट टेंस का लफ्ज आ गया, तो फिर आप इसको कैसे यूज करेंगे, यूज टू। याद है आपको, जब प्रेजेंट टेंस आता है तो यूज टू यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्ब आता है। एंड द पीपल इन हिज टाइम, फी ज़मानिही, इन हिज टाइम, जमान का मतलब टाइम होता है, उनके जमाने में, जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं ना उनके जमाने में, उस वक्त, उस टाइम में, वकान अन्नासु फी ज़मानी यअबुदूना गैरल्लाह, and the people in his time used to worship गैर अल्लाह, अदर देन अल्लाह, यानी उनके जमाने में लोग जो थे वो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते थे। ववदअू अरबाबन कसीरतन मिन इंदी अनफुसिहिम, ववदअू, जिस तरह मैंने बताया कि वदअू लफ्ज किससे निकला है, वदअ, यानी खुद ही किसी चीज को घड़ लेना। जैसे हमने पढ़ा था मौदू, मैंने आपको बताया था मौदू हदीस कौन सी होती है, जो लोगों ने घड़ी हुई होती है, फैब्रिकेटेड हदीस। तो वदअू, and they had fabricated, they had made up, they had put up arbaban kasiratan, they had made a lot of lords। अरबाबन किस चीज की जमा है, रब की जमा है, प्लूरल हो गया अरबाब, सिंगुलर हो गया रब। लॉर्ड्स भी कह सकते हैं, और क्योंकि रब नॉर्मली लॉर्ड को कहते हैं, गॉड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए बहुत सारे खुदा या बहुत सारे रब उन्होंने बना लिए थे, मिन इंदी अनफुसिहिम, फ्रॉम देमसेल्व्स, यानी फ्रॉम देमसेल्व्स भी है और फॉर देमसेल्व्स भी है, मिन इंदी अनफुसिहिम, उन्होंने अपने लिए या अपने आप से, दोनों चीजें करेक्ट है, उन्होंने अपने लिए भी और अपने आप से भी बहुत सारे खुदा घड़ लिए थे। तो एक दफा रिपीट करती हूँ, एंड दे हैड फैब्रिकेटेड और दे हैड मेड अप और पुट अप अ लॉट ऑफ लॉर्ड्स फ्रॉम देमसेल्व्स और फॉर देमसेल्व्स, दोनों करेक्ट है। किसकी बारी, कौन पढ़ेंगे अब? जी मैं पढ़ लूं। सबा, अब आप, सबा, आपने नहीं पढ़ा अभी तक, पढ़ लीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू हाज़ा रब्बुल बर्री, and they said this is the Lord of land, वहाज़ा, द लैंड, Lord of the land, वहाज़ा, इंग्लिश में जो भी लिखे अगर अल सिदा जो है, आपने दोबारा से पढ़, रब्बुल, आपने क्या बर्री, बर्री, वहाज़ा रब्बुल बहरी, and this is the Lord of the sea, वहाज़ा रब्बुल रिज़्क़ी, and this is the Lord of the rizq, वहाज़ा
Rabbul Matari. Matari means rain, barish. rain. And this is the Lord of the rain. Wakana Yusufu yara kulla dhalika. And Yusuf used to know that all that lie or fake. आरिफा नहीं है, यारिफुन नहीं है, यरा है. Used to see. Used to see. And Yusuf used to see all that is wrong or lie. Wayad वहाँ लिखा है lie यार सबा. kulla dhalika. Oh no. All that. See all that. All that. And Yusuf see all that. Wayadhaku. And yadhaku means To laugh. and he laughed, right? I wanted to say he made fun of. नहीं फन नहीं कभी कर. पैगंबर किसी का फन बनाते हैं. वो उस पर अच्छा नहीं आएगा. और ये भी जो है ना, आपको अभी से बता दूं, मैं भूल ना जाऊं एक्सप्लेन करते हुए. यदहकु जो लिखा हुआ है ना, तो ये यदहकु कुरान में नहीं है कि वो हंसते थे. ये चूंकि ऑथर है, ऑथर ने बच्चों के लिए किताब लिखी है, तो उन्होंने बच्चों को बताने के लिए, मतलब देखो ये कितनी अजीब बात है. तो उनको हंसी आती थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हंसी नहीं आती थी. यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुख होता था, उनको दुख होता था. लेकिन कुरान में ये सब इतना लिखा हुआ नहीं है. तो वो ये कि इन लोगों ने अपने आप से रब बनाए हुए, अपने आप से खुदा बनाए हुए, लेकिन चूंकि बच्चों को सिखाना था तो उनको बताना था कि ये कितनी गलत बात है. मतलब ये तो कोई सेंस नहीं मेक करता. इसीलिए कहने के लिए कि बुरा माना या ये करने के बदले बच्चों को सिखा दिया कि उनको हंसी आती थी. मतलब उनको ये मतलब का खेज लगता था, ये बात लगती थी कि इतने सारे खुदा कैसे हो सकते हैं. यदहकु. ठीक है, आगे. Wakana Yusufu ya'lamu kulla dhalika. And Yusuf used to know that all that wayabki. Wayabki means And he used to cry. and he used to cry. Wakana Yusufu yuridu an yad'uwahum ila Allahi. And Yusuf used to Want या desire. used to desire that I am going to call them towards Allah. I am नहीं है यहाँ पर कहीं. That he calls them to Allah. I am नहीं, yad'uwahum. That he Okay. And he used to call ad'uwa. ठीक है ना, ये ad'uwa नहीं, yad'uwahum. وقد أراد الله أن يكون ذلك في السجن. And he decided or he decided qad का क्या मतलब है? قد indeed. Certainly, surely, indeed से भी बढ़ के है. qad उससे भी बढ़ के. फिर अराद अल्लाहु. And indeed he decided Who decided? Allah decided. तो बोले ना अराद अल्लाहु. And Allah, indeed Allah decided أن يكون. Allah wanted. Decided का अलग लफ्ज़ है, यहकुमा होता है. ये Allah decided नहीं है, Allah wanted. And That- indeed Allah wanted that يكون ذلك في السجن. That it happens in the prison. Okay. In the prison. चलिए, करती हूँ. कहाँ से आपने स्टार्ट किया था? वक़ालू से. रब्बुल बर्री है ना? अच्छा. जी जी. चलें. वक़ालू हाज़ा रब्बुल बर्री. वक़ालू and they said. किन्होंने कहा? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लोग थे जिनके बहुत सारे जो अपने खुदा बना के रखे थे, उनके बारे में बात हो रही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुदा बना के रखे थे. वक़ालू and they said हाज़ा रब्बुल बर्री. This is the Lord of the land. वहाज़ा रब्बुल बहरी. And this is the Lord of the sea. बर और बहर तो आपको मालूम ही है. रिस्क भी आपको मालूम है. वहाज़ा रब्बुल रिस्की. And this is the Lord of the provision. रिस्क के ये खुदा है. वहाज़ा रब्बुल मतरी. And मतर का मतलब बारिश होती है, बारिश होता है, तो इसलिए and this is the Lord of the rain. समझ में आ गया? अलग अलग खुदा, जिस तरह अभी भी हैं हिंदुओं के अलग अलग खुदा हैं. आपने देखे हैं ये फलां चीज का खुदा है, फलां चीज का खुदा है. इसी तरह इनका भी यही था. ये मुशरिकीन जो है ये भी यही करते थे. इनके बहुत सारे अलग अलग खुदा होते थे. वकाना यूसुफु यरा कुल्ला ज़ालिका व यदहकु. वकाना यूसुफु चूंकि काना है और यरा है तो यूज्ड टू कहेंगे इसका. ठीक है. यरा का मतलब क्या है? यरा का मतलब है
देखते थे. And Yusuf used to see kulla zalika, all of that. He used to see وَيَضْحَكُ and he used to laugh. अब जब काना शुरू में आया ना तो काना समझ ले के बाद में भी है. And he used to laugh. आप अगर ना भी कहें तो ठीक है, लेकिन चूंकि काना शुरू में आया, it applies to both यरा और यदहकु. So and he used to see and he used to see all of that and he used to laugh. وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَبْكِي. And Yusuf used to know, Ya'lamu used to know kulla zalika, all of that, same thing. वयबकी, आपने बका यबकी आपको याद है, आपने पढ़ा था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब घर आए थे तो हमने ये पढ़ा था कि जब वो घर आए तो उन्होंने अपने बाप के सामने रोए आके, याद है. फिर हमने इस पे ये भी मैंने आपको बताया था कि शेख अकरम बता रहे थे कि एक औरत जब जज के पास गई तो वो जोर जोर से रो रही थी, तो लोगों ने कहा कि ये रो रही है, बेचारी मजलूम होगी. तो जज ने कहा नहीं, किसी के रोने से ये अंदाजा मत लगाएं कि ये मजलूम है, क्योंकि एक्टिंग कर सकते हैं जिस तरह यूसुफ के अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी एक्टिंग की थी. लेकिन यहाँ पर है कि वयब की जो लिखा हुआ है, ये अब यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते नहीं होंगे या रोते होंगे अल्लाह को मालूम है, लेकिन ये ऑथर ने बच्चों के लिए लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ये सब देखते थे तो उनको हंसी आती थी और वो कहते थे ये क्या है, और उनको चूंकि सब कुछ मालूम था तो उनको रोना आता था अपनी कौम के ऊपर. एंड यूसुफ यूज्ड टू नो ऑल ऑफ दैट एंड ही यूज्ड टू क्राई. وَكَانَ يُوسُفُ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى اللَّهِ. وَكَانَ يُوسُفُ, and Yusuf used to يُرِيدُ. يُرِيدُ का मतलब क्या है? To want या to desire. So and Yusuf used to desire or Yusuf used to want أَنْ يَدْعُوَهُمْ, that he calls يَدْعُوَهُمْ, that he calls them إِلَى اللَّهِ, to Allah. यूसुफ अलैहिस्सलाम को यही होता था कि मैं इन लोगों को इतने सारे खुदाओं के बदले इनको एक खुदा की तरफ इनको बुलाऊं. आप इंग्लिश में इसको ये भी सिंपली कह सकते हैं, जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, बट यूसुफ used to want or used to desire that he calls them to Allah. इंग्लिश में आप अगर सिंपली ये भी लिख लें, यूसुफ wanted to call them to Allah. यूसुफ wanted to call them to Allah. وقد أراد أن يكون ذلك في السجن. وقد أراد الله, अब लेकिन अल्लाह की क्या मर्जी थी? And certainly यानी surely أراد الله, अल्लाह ये चाहता था, क्या चाहता था अल्लाह? أن يكون, कि ये हो जाए, that it happens, ذلك, that happens, في السجن, in the prison. यकूना का मतलब क्या है? To become या to happen. यकूनो क्यों नहीं है यहाँ पर? यकूना क्यों लिखा हुआ है? होता तो यकूनो है ना असल लफ्ज. बताइए, यकूनो क्यों नहीं है? यकूना क्यों है? कम ऑन, कोई नहीं बता रहा है. अन की वजह से, Object of the verb, Because of the an. object of the verb aradallahu नहीं, की वजह से. अन की वजह से है, अन की वजह से. वक़द अरादल्लाहु अन यकूना ज़ालिका फ़ी सिजनी, और यहाँ पर चूंकि अन आया तो अन के बाद जो वर्ब आता है तो वो यदउ के, किधर गया, किधर है, यकूना, यकूनु के बदले यकूना हो गया. एंड सर्टेनली, श्योरली, अल्लाह वांटेड दैट टू हैपन इन द प्रिजन. अब कौन पढ़ेंगे? अला यस्तहिकु. मैं पढ़ूं? नाहिद नहीं है. मैं पढ़ूंगी. इरशादा पढ़ लीजिए आप, मैं ट्रांसलेट. जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अला यस्तहिकु अहलु सिजनी अल मौइज़ता. अल्ला यस्तहिकु अहलु सिजनी रहमता. अलैसा अहलु सिजनी इबादल्लाह. अलैसा अहलु सिजनी बनी आदम. काना यूसुफु फी सिजनी वलाकिन्नहु काना हुर्रन जरियन. काना यूसुफु फकीरन वलाकिन्नहु काना जवादन सखियन. इन्नल अनबिया, जी, इन्नल अनबिया यजहरुना बिल हक्का फी कुल्ली मकान. हक़्क़ी, फी कुल्ला, बिल हक़्क़ी. बिल, इस पे पता है मुझे है, कसरा नहीं है. नहीं है. आप देखिए शद्दा के नीचे है, शद्दा ऊपर है, है इसको कसरा कसरा नहीं. है. पता है, पता है. कसरा है. ये किसका फोन बज रहा है? प्लीज बंद कीजिए, प्लीज माइक्स बंद कीजिए. जी. इरशादा ये फिर देख लीजिए, बिल हक़्क़ी है. ओके,
बी के बाद फतहा नहीं हो सकता है. चलिए आगे फी. इरशाद आगे खत्म कीजिए. फी. हम किधर थे? इन्नल अंबिया यजहरुना बिल हक़्क़ि फी بالحق في كل مكان إن الأنبياء जी कुल्ली मकानिन. अच्छा उधर कुल्ली फिर मैं करूंगी ठीक है. ये आपका ठीक होगा लिखा हुआ, आपको समझ नहीं अभी बार बार, क्योंकि ऊपर जो तशदीद है ना शद्दा, उसके नीचे है ना लाइन. लाम से ऊपर है लेकिन तशदीद के नीचे है ना, जी जी वो जेर उसका होता है, वो कसरा अच्छा होता उसका मतलब अच्छा है. मैं कई दफा बता चुकी हूँ और कई पिछले क्लासों में हर बार बताती हूँ. आप लोग इसको नोट करें. जी जी और आपको पता है अच्छा फी के बाद क्या आना चाहिए, आपको खुद आना चाहिए ना. फी के बाद क्या होना चाहिए और बी के बाद क्या आना चाहिए? कसरा आना चाहिए. आगे जी पढ़. في كل مكان إن الأنبياء يجودون بالخير في كل زمان. वेरी गुड. फी कुल्ली जमाने. ठीक है, हो गया. मैं अब ये एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग माइक्स बंद कर दिए. अला यस्तहिक़्क़ु अहल सिज्निल मौइज़ता. अला का क्या मतलब हुआ? अला किसी को पता है? अला का मतलब है आर नॉट, डू नॉट, मतलब अला. अ और ला दो चीजें आ गई ना. अ का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है. और ला का मतलब नहीं. क्या नहीं? यस्तहिक़्क़ु. यस्तहिक़्क़ु इज फॉर्म 10. फॉर्म 10 है यस्तहिक़्क़ु. इसका वर्ड क्या है? इस्तहक़्क़ यस्तहिक़्क़ु. किससे निकला? हक. हक से निकला. लफ्ज हक है और इसका फॉर्म क्या है? इस्तहक़्क़ यस्तहिक़्क़ु, यानी कि इसका मतलब है डिजर्व. उर्दू में जैसे हम कहते हैं मुस्तहिक. आप लोग फॉर्म 10 भी लिख लें, इस्तहक़्क़ यस्तहिक़्क़ु भी लिख लें, वर्ड हक भी लिख लें और इसके साथ लिख लें कि उर्दू में जिसको हम कहते हैं मुस्तहिक. अला यस्तहिक़्क़ु, क्या नहीं मुस्तहिक है, अहलुस सिज्नी, यानी कि जो प्रिजनर्स हैं, जो इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स के, जो प्रिजन के लोग हैं, जेल के लोग हैं, कैद खाने के लोग हैं, मौइज़ता. क्या मौइज़ा हम पढ़ चुके हैं. मौइज़ता का मतलब है एडमोनिशन, यानी वाज़ और नसीहत. तो क्या कैद खाने के लोगों को वाज़ और नसीहत की जरूरत नहीं है? क्या वो मुस्तहिक नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि उनको भी वाज़ और नसीहत की जाए? इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, डू द प्रिजनर्स नॉट डिजर्व एडमोनिशन. डिजर्व मुस्तहिक होना, डिजर्व. डू द प्रिजनर्स नॉट डिजर्व एडमोनिशन. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने. अल्लाह यस्तहिक़्क़ु अहलु सिज्नि रहमा. सेम थिंग है. एंड डू द प्रिजनर्स नॉट डिजर्व रहमा. रहमा क्या चीज है? मर्सी. और क्या जो कैद खाने के लोग हैं उन वो रहमत के मुस्तहिक नहीं है, वाज़ और नसीहत के मुस्तहिक नहीं है, वो रहमत के मुस्तहिक नहीं है. अलैसा अहलु सिज्नि इबादल्लाहि. अलैसा आर नॉट, अलैसा आर नॉट, क्या लिखा हुआ है? अहलु सिज्नि are not the prisoners, ibadallahi, the slaves of Allah. Why is it ibadallahi? Ibadullahi क्यों नहीं है? ibadallahi क्यों है? worship of Allah. हाँ, वर्शिप ऑफ अल्लाह तो है, लेकिन इबादुल्लाही क्यों नहीं और इबादल्लाही क्यों है? एक ही सेंटेंस में जवाब है उसका. इट इज द खबरु लैसा. आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि जब लैसा के साथ कोई चीज लगाते हैं तो क्या बन जाता है? इबादल्लाही. इबादुल्लाही चेंज हो जाएगा इबादल्लाही. ओके, लिख लें अगर आप भूल गई हैं तो. आर नॉट प्रिजनर्स द स्लेव्स ऑफ अल्लाह. क्या कैद खाने के लोग अल्लाह के गुलाम नहीं है, अल्लाह के स्लेव्स नहीं है. are not prisoners the slaves of Allah. alaysa ahlu sijni bani adama. Are not prisoners the bani adam. Are not prisoners the children of Adam. bani किसको कहते हैं? children को कहते हैं. bani adam हर वक्त हम यूज करते हैं. alaysa ahlu sijni bani adama. और क्या कैद खाने के लोग जो हैं वो आदम की औलाद नहीं है? are not prisoners the children of Adam. देखिए कितनी खूबसूरत बच्चों के लिए एक सबक है कि प्रिजनर्स जो है वो भी अल्लाह के बंदे हैं. प्रिजनर जो है वो भी इबादत करते हैं अल्लाह के, वो भी अल्लाह के स्लेव्स भी हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, उन्होंने भी वर्शिप करना है. तो क्या उनको वो मुस्तहिक नहीं है कि उनको भी वाज़ और नसीहत की जाए? वो मुस्तहिक नहीं है कि उन पे भी रहमत हो? कितनी प्यारी बात है. आप सोचिए, हम तो समझते हैं जो प्रिजन में है वो प्रिजन में है. अल्हम्दुलिल्लाह IIOC का बहुत अच्छा प्रोग्राम है. हमारा प्रिजन का आप देखें कि जाते हैं हमारे प्रिजन, IIOC के लोग जाते हैं हमारे प्रिजन्स में, जाते हैं, उनको किताबें देते हैं, उनको मटेरियल देते हैं, उनको खत लिखते हैं, वो खतों के जवाब देते हैं. बहुत अच्छा प्रिजनर्स का प्रोग्राम है. आप सब उसको सपोर्ट करें इंशाल्लाह.
काना यूसुफु फि सिजनी वलाकिन्नहु काना हुर्रन जरियन. काना यूसुफु फि सिजनी, इसका क्या मतलब हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम was in the यूसुफ फि सिजनी, यूसुफ अलैहिस्सलाम was in the prison, मतलब वो कैद में थे, लेकिन वलाकिन्नहु, लेकिन वो, but he काना हुर्रन जरियन, but he was free. हुर्रन का मतलब क्या है? फ्री. हरीर, हुर्रन का मतलब है फ्री. हुर्रन, हुर्रन होता है, हुर्रन है यहाँ पर, तो काना की वजह से हुर्रन हो गया कि वह हुर्रन है. और जरीअन, जरीअन शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा. जरीअन का मतलब है बहादुर, बोल्ड. बोल्ड थे, बहादुर थे, करेजियस थे. ठीक है, लिख लीजिए आप जरीअन. he was bold, he was courageous, वो बहादुर थे. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, although he was in the prison, यूसुफ अलैहिस्सलाम was in the prison, वो कैद में थे, लेकिन असल में क्या थे? वो फ्री थे. कैद में होने का मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं सकते, वो बहादुर नहीं है. ठीक है, तो काना की वजह से हुर्रन हो गया. और जरी अन क्यों हुआ? जरी अन क्यों है? वहां तो काना नहीं है. जरी अन क्यों है? जरी उन क्यों नहीं है? कोई बता दे मुझे. हुर्रन जरी अन, कम ऑन. हुर्रन तो काना की वजह से, जरी अन क्यों है? Khabar 1 and 2, second one, this one. This is the sifa of हुर्रन. आपको याद है ना? Okay. एडजेक्टिव नात मानूत कह सकते हैं या सिफा मौसूफ कह सकते हैं. अब जब आपकी मौसूफ जो है हुर्रन है, तो द सिफा हैज टू एग्री विद द मौसूफ इन जेंडर, इन केस, इन नंबर, एवरीथिंग. याद है? हुर्रन जरीअन, याद रखा कीजिए, क्योंकि दो डिफरेंट नहीं है, दो डिफरेंट सिफात नहीं है, दो डिफरेंट चीजें नहीं है. हुर्रन जरीअन, इट इज, हुर्रन इज दैट ही वाज फ्री, एंड जरीअन इज दैट ही वाज फ्री एंड ही वाज, it is the sifa of Hurran that he was a courageous, he was courageous. ठीक है ना? He was generous and he was courageous, he was free and he was bold. He was free and bold. Okay. काना यूसुफु फकीरन वलाकिन्नहु काना जवादन सखियन. देखिए कितनी खूबसूरत बात है. इसको आप दिल पे सोचें, जरा सोचें, दिल से सोचें आप कि अल्लाह ताला नहीं बता रहे हमको, लेकिन ये जो ऑथर बता रहे हैं हमको कि यूसुफ although he was in the prison, कैद में थे, लेकिन क्या थे? असल में वो कैद में नहीं थे, असल में वो फ्री थे. he was bold, वो करेजियस थे, वो बहादुर थे, जो कुछ बोलना चाहे वो बोल लेते थे और बोल सकते थे. नेक्स्ट चीज जो बता रहे हैं, काना यूसुफ फकीरन. इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो फकीरन. फकीर का क्या मतलब है? गरीब. फकीरन का क्या मतलब है? गरीब, पुअर. गरीब, बिल्कुल ठीक है, गरीब थे. फकीर का मतलब उर्दू वाले फकीर नहीं है, याद रखिएगा. फकीर उर्दू में क्या होता है? बेगर होता है. ठीक है ना? भीख मांगने वाला. यूसुफ अलैहिस्सलाम फकीरन का मतलब ये नहीं कि वो भीख मांगने वाले थे, बिल्कुल याद रख लें. उर्दू का फकीर डिफरेंट है, और आपको पता है कि अरबिक में फकीरुन और गनीउन यूज होता है. तो वो फकीरुन थे, यानी कि वो गरीब थे. ही वॉज पुअर, बट उनके साथ क्या था? ही वॉज वलाकिन्नहु, बट ही वॉज काना जवादन सखियन, बट ही यूज्ड टू बी, क्या थे? जेनरस. जवादन का मतलब देखे होता है जेनरस या हॉस्पिटेबल. उसका मतलब ये कि मेहमान नवाज, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, जेनरस भी थे और मेहमान नवाज भी थे. ये जवादन. जवादन. और उसके बाद सखियन. सखी आपको पता है हम उर्दू में भी कहते हैं सखी, जेनरस. असल में दोनों का मतलब जेनरस है. ठीक है ना? लेकिन जब दो दफा यूज हुआ जवादन सखियन, तो आप पहले वाले को कह सकते हैं हॉस्पिटेबल एंड दूसरे वाले को कह सकते हैं जेनरस. या जिस तरह बाज उलमा कहते हैं, आप इसको ये कह सकते हैं कि ही वॉज वेरी जेनरस. दो दफा जेनरस का लफ्ज यूज होगा ना, एक जवादन एंड एक सखियन. मुझे अच्छा लगता है ये कहने के लिए, ही वॉज वेरी हॉस्पिटेबल एंड जेनरस, यानी वो मेहमान नवाज भी थे और सखी भी थे. देखिए, सखी होना ये कि वो लोगों को देते थे, मेहमान नवाज ये कि वो हर एक की खातिर भी करते थे. तो खातिर भी करते थे और जेनरस भी थे, गरीब होने के बावजूद. इन्नल अंबिया यजहरूना बिल हक़्क़ि फी कुल्ली मकान. इन्नल्लाह, इंडीड द प्रॉफिट्स, इन्नल्लाह नहीं, इन दिमाग में इन्नल्लाह. इन्नल अंबिया, इंडीड द प्रॉफिट्स, यजहरूना. आपको पता है यजहरूना किसको कहते हैं? किसी चीज को डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, पब्लिसाइज करना. यजहरूना क्या? प्लूरल है. अंबिया प्लूरल है, अंबिया के साथ यूज हुआ यजहरूना. द प्रॉफिट्स डिक्लेयर, या दे अनाउंस, या दे पब्लिसाइज
دیکھیں آپ کو پتہ ہے جہری نماز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زور سے پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یجہرون دے ڈکلیئر, دے پروناؤنس, دے پبلسائز بالحق یعنی ٹروتھ کو, بالحق یعنی حق کو. جو انبیاء ہیں وہ حق کو یجہرون پروناؤنس کرتے حق کو فی کل مکان, ہر جگہ پہ, ان ایوری پلیس, فی کل مکان. آپ لوگ جب تراویح اٹینڈ کرتے ہیں, تراویحوں کے بعد جو ہماری لاسٹ 10 نائٹس پہ جو دعائیں ہوتی ہیں اور جو وتر میں جو دعائیں ہوتی ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے؟ فی کل مکان. خطبے میں بھی جو ہمارے علماء کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ فی کل مکان. فی کل مکان کا مطلب ہے ان ایوری پلیس, ہر جگہ پہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں بھی تشدد ہو رہا ہے, جہاں بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں یا اللہ جس پہ کوئی مصیبت آئی ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ان لوگوں کو اس سے پروٹیکٹ کرے, اس سے نجات دلائے. اس کا یہی مطلب ہے indeed the prophets declare اور they announce the truth in every place. ہر جگہ پہ وہ اناؤنس کرتے ہیں. ان الانبیاء and indeed the prophet وہ نہیں ہے, ان الانبیاء indeed the prophets یجودون. یجودون کا مطلب ہے, اگین اس کا مطلب ہے generous. یجودون they are generous بالخیر. خیر کا مطلب ہے ہر اچھی چیز میں, goodness, in goodness. Indeed the prophets are generous with goodness فی کل زمان. مکان کیا تھا؟ جگہ. زمان کیا ہے؟ ٹائم. ہر زمانے میں. ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں نا, کلی مکان کلی زمان. تو کلی زمان کا مطلب ہے ہر زمانے میں, ان all times. اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ بے شک انبیاء جو ہیں وہ ہر زمانے میں خیر کرنے کے لیے, گڈنس کے لیے وہ جنرس ہوتے ہیں, ان کا وہ سخی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انگلش میں بولیں گے indeed the prophets are generous with goodness at all times. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ الحمدللہ ٹائم ہے. حکمت کون پڑھیں گے؟ شمیم آپ کی باری دوبارہ آ گئی, اور سب ناہید نہیں آج؟ حکمت یوسف. نورین, یوسف فی نفسہ. شمیم آپ دوبارہ پڑھ لیجیے. حکمت یوسف, wisdom of Yusuf. جی. قال یوسف فی نفسہ. Yusuf said to himself, إن الحاجة ساقت الرجلين إلي. That indeed the need, what is ساقت؟ طاقت کا مطلب ہے brought یا drove, لے کر آیا. has brought. Okay. یا drove. Indeed the need of the two people brought towards it. To me, ilayya, to me. To me. Okay, so he said to himself that the need of these two people brought them towards me. Brought towards me. Okay. Inna sahibal hajati yalinu wa yaqza'u. And that the need of indeed the need of صاحب الحاجتی اضافہ ہے کیا؟ صاحب difficult. صاحب الحاجتی, the need of companions. the people, the person. ہاں, exactly, the person in need, the one in need, yeah, the person in need. Yalinu. What is yalinu? Soft. I can't hear you. Soft, sorry, soft. Okay. Naram. Okay, soft. Okay. Wa inna sahibal hajati yalinu. Indeed, the need of the person. Need nahi, person in need. Indeed, the person in need is soft. Is soft. وَيَخْزَأُ, and he is humble. And he is humble. It's kind of new words. وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يُطِيعُ,
and indeed the person in need is like submissive, يطيع. like the one who follows, the one who muti is like चले मैं बताती हूँ. itaat karna, Obeys. obeys, the one, yeah, obeys. وَيَسْمَعُ, and he listens. Okay, ये मैं करती हूँ इंशाल्लाह. चलें, जज़ाकल्लाह खैर. हिकमतु यूसुफा, ये सबको आसान है, किसी को हिकमा, आप सबको मालूम है हिकमा किसको कहते हैं? विजडम. हिकमतु यूसुफा, अगेन ये इदाफा है. हिकमतु यूसुफा, द विजडम ऑफ यूसुफ या विजडम ऑफ यूसुफ, ये टाइटल है, पूरा सेंटेंस नहीं है, इट्स अ टाइटल. तो हिकमतु यूसुफा. قال يوسف في نفسه, قال he said, who said? Yusuf said في نفسه, to himself. यानी उर्दू में कहेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप से कहा, दिल में कहा, अपने आप से कहा, to himself, ठीक है ना. and Yusuf said to himself, उन्होंने क्या कहा अपने आप से? इन्नल हाजता, indeed, हाजा क्या चीज है? हाजत का मतलब है हाजत या जरूरत, जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं हाजत या जरूरत. indeed, the need या हाजत या जरूरत जो भी है. साक़त, has drove, has driven या has brought. ar-rajulaini, the two men, इलैया, to me. यानी बेशक उन्होंने कहा कि जो नीड थी, जरूरत थी या जो हाजत थी इन दो मर्दों की, वो उनको मेरी तरफ ले आया है. उनकी क्या जरूरत थी? आपको याद है? किस चीज की बात कर रहे हैं? किस चीज की बात कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट याद है? क्यों आए? ड्रीम की वजह से, अपने ड्रीम की इंटरप्रिटेशन की वजह से वो आए हैं, ठीक है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास. तो अब इसको कहते हैं यूसुफ said to himself, indeed the need drove the two men to me. Yeah, indeed the need has brought the two men to me. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो हाजत तो हो गया, अब साहिब अल हाजा आ गया. दोनों में डिफरेंस है, यही मैं शमीम को बताना चाहती हूँ. शमीम नेक्स्ट टाइम सीख गई थी, पहली दफा उन्होंने कहा इन्ना साहिब अल हाजती इज अगेन एन इदाफा फॉर्म में. इसका मतलब द पर्सन हु इज नीडी, द पर्सन, द वन हु इज नीडी. ओके, समझ में आ गई? जिस तरह हम कहते हैं ना जू, जिस तरह लफ्ज आया था जू, जाल के साथ है, जू, जाता, जा, possessor of, who possesses need, यानी यहाँ पर ये आ गया साहिबल हाजती, कि जो नीड जिसकी है, जो the one in need, the person in need. यलीनो is soft. यलीन soft को कहते हैं. आपको याद आता है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा था जब फिरौन के पास जा रहे थे? वो किसी को याद है कुरान का? जिसको भी याद है बता दें. सबा, आप तो, आपको शायद याद होगा, आप वो करती रहती हैं हर वक्त दौरे कुरान. सबा याद है? नहीं, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा. लय्यिन का लफ्ज यूज हुआ था. यस, बी सॉफ्ट. जब आप बात करेंगे फिरौन के सामने तो बी सॉफ्ट, बहुत नरमी के साथ उनसे बात करना. शायद उनकी समझ में बात आ जाए सब, या शायद वो खौफ खा जाए. ठीक है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं. फिरौन कैसा बंदा था? दुनिया में उससे वर्स कोई बंदा आया? कोई उससे बुरा बंदा दुनिया में आया है? ना आएगा, कभी भी नहीं. कोई भी इंसान फिरौन से बदतर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता. और ये हर जगह पे तमाम स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि उससे बदतर कोई भी दुनिया में नहीं था. लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि जब उसके पास जाओ तो उससे सॉफ्टली बात करो. इससे हम क्या सबक सीखते हैं? इस वक्त तो इसमें नहीं, इस वक्त तो हम दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कह रही हूँ कि साथ साथ कुरान आ जाता है तो कुरान के बारे में भी थोड़ा सबक भी हम सीख लेते हैं साथ साथ. कि जब हम किसी से भी बात करें, चाहे वो सख्त तरीन दुश्मन हो, बदतरीन दुश्मन हो, चाहे वो अपनी औलाद हो, चाहे वो अपने कोई भी रिश्तेदार हो, अपने शौहर है. नॉर्मली क्या होता है, शौहर बीवी की लड़ाइयाँ हमारी हो जाती हैं, हम सख्ती से बात करते हैं. ये हमें सबक सीखना है कि हमें सख्ती से बात नहीं करना है. चाहे वो शौहर है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो औलाद है, चाहे वो नौकर है, चाहे वो कुछ भी हमारे सबऑर्डिनेट है, बात सॉफ्टली करनी है. फिरऔन जैसे के साथ भी सॉफ्टली बात करनी थी कि जब हम सॉफ्टली बात करेंगे तो सामने वाले पे असर होगा. जब हम सख्ती से बात करेंगे तो क्या होगा? फितना खड़ा होगा. तो ये बता रहे हैं इस वक्त अभी किताब में हम ये पढ़ रहे हैं कि वइन्न साहिबल हाजती, और बेशक के जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद आप इसको कह दें, साहिबल हाजती. उर्दू में अच्छा लफ्ज है जरूरतमंद. यलीनु वो सॉफ्ट होता है, वो नरमी से बात, नरम होता है. वह यखदाउ, और वो हम्बल होता है, आजिज होता है. यखदाउ, ही इज हम्बल. सो एंड इंडीड इंग्लिश में द वन इन नीड इज सॉफ्ट एंड ही इज हम्बल.
وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يُطْوِئُ وَيَسْمَعُ. And indeed युत्विउ का शमीम को जिस तरह शमीम एंड में पहुंच गई रिजल्ट पे कि किससे होता है अता युति अता युत्विउ अता युत्विउ ये फॉर्म 4 है ओबेज ठीक है ना जिस तरह इन्होंने मोती इनको याद आ गया था लेकिन इनको ये नहीं याद आ रहा था अतात गुजार हम कहते हैं ना अतात गुजार अतात करने वाले तो फॉर्म 4 है अता युत्विउ का मतलब है कि he obeys यस्माउ ये आप सबको आता है यस्माउ he listens अगर हम पास्ट टेंस में कहेंगे तो कैसे बोलेंगे he listened Samia. समिआ ठीक है आइन है समिआ how would you say अच्छा ठीक है and indeed the one in need obeys and he listens आगे नहीं पढ़ा हुआ ना आगे कौन पढ़ेंगे अस्मा आप पढ़ेंगी हाँ ठीक है फलो कुल्तु लहुमा शयन लसमिआ वसमिआ अहलुस सिज्नि वलाकिन्न यूसुफ लम यस्तहजिल ताजिल है यस्ताजिल इसको पहले आप ट्रांसलेट कर लीजिए and they said मुझे तो and he said नहीं and दिख follow लव क्या चीज होता है आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है अभी तक लव का मतलब होता है अगर इफ उर्दू में कहते हैं ना अगर हाँ मतलब इफ इंग्लिश में इफ आगे कुल्तु if you said कुल्तु क्या होता है you said फिर कुल्ता क्या होता है I said. kultu is I said lahuma to them both of them to both of them shay'an thing lahuma both of them हाँ shay'an thing anything anything या lasamia something जो anything भी होगा कुछ भी उनको बोलूं तो लसमिआ wa samia ahlu sijni समिआ listen कौन listen to the prisoner the prisoners will listen to they both समिआ la के मतलब है surely indeed समिआ with an alif means they both will listen they both will listen to the prisoners नहीं the prisoners नहीं है वसमिआ इसके बाद फिर है लसमिआ समिआ to the prisoners चलिए मैं बताती हूँ ठीक है walakinna yusufa lahum yastajib and indeed Yusuf was not वलाकिन ना इंडीड नहीं होता है वलाकिन का क्या मतलब होता है लेकिन but Yusuf was not in haste Yusuf did not lam yasta'jil did not rush ठीक है ना did not bal qala lahuma and he said to them rather बल का मतलब क्या होता है rather या instead rather ana ukhbiru bitawili ruya qabla an yatikuma ta'amukuma यातीकुमा yatiyakuma ta'amukuma I will let you know the interpretation of the dreams before you both get your food. Fajalasa watmanna get नहीं comes to you याती आए आप दोनों के पास खाना आपके पास आए तो आमुकुमा आप दोनों का खाना Fajalasa watmanna and they sat to eat. अच्छा अब मुझे ये बताने दीजिए इसमें जरा थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है माइक्स प्लीज बंद कर लीजिए फलो फ का मतलब है सो
लव का मतलब है if, आपको मैंने बताया भी उर्दू में जैसे कहते हैं अगर. So if qultu, I said something, shay'an something या anything. So if I said, अब यूसुफ अलैहि सलाम आपको याद है ना, फी नफ्सिही बोल रहे हैं ना, फी नफ्सिही था ना, ये वो कंटिन्यू हो रहा है कि जो बंदा हाजत में होता है, जो साहिब हाजत होते हैं या जो जरूरतमंद होते हैं, वो सॉफ्ट भी होते हैं, वो हम्बल भी होते हैं. और फिर जो हाजत वाले होते हैं वो अतात भी करते हैं, यानी ओबे भी करते हैं और सुनते भी हैं. फिर वो कहते हैं अगर फलो, तो अगर मैं कुल्तु, मैं कहूंगा लहुमा, उन दोनों को, शैअन कुछ भी, ये दोनों जो मेरे पास आए हैं, अगर मैं इनको कुछ भी कहूंगा, लसमआ, श्योरली दे विल बोथ लिसन, ये दोनों मेरी बात सुनेंगे, ये दोनों मुझे सुनेंगे. वसमआ, और सुनेंगे अहलु सिजनी, ये टू नहीं है, याद रखिएगा, ये है वसमआ, और सुनेंगे कौन, अहलु सिजनी, और जो प्रिजनर्स हैं, जो इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, वो भी सुनेंगे. ये वो पूरा एक साथ कह रहे हैं कि ये दो भी मेरी बात सुनेंगे, और सिर्फ ये दो नहीं, बल्कि जो मैं बोलूंगा तो जितने भी वहां पर कैदी हैं वो सब सुनेंगे. वलाकिन यूसुफा, लेकिन यूसुफ ने, लम यस्ताजिल, उन्होंने जल्दी नहीं की. यस्ताजिल, तो अब याद रखिए समेआ और समेआ में डिफरेंस है. ओके, समेआ दो लोग और समेआ दो लोगों का सुनना और समेआ एक का सुनना. यस्ताजिल जो है ये उर्दू में जैसे हम कहते हैं उजलत, किसी को जल्दी हो, किसी को उजलत हो, यानी टू रश या टू हेसन किसी चीज में. जैसे आई थिंक आसमान ने कहा हेस्ट और मैंने कहा रश. यस्ताजिल ये का फॉर्म 10 है, लिख लीजिए फॉर्म 10 है. इस्ताजल यस्ताजिलु, इस्ताजल यस्ताजिलु, ये लिख लीजिए आप. तो इसलिए यूसुफ लम यस्ताजिल, यानी यूसुफ ने जल्दी नहीं की, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रश नहीं किया, उन्होंने उजलत नहीं की. अब मैं इसको इंग्लिश में रिपीट करती हूँ. सो इफ आई सेड समथिंग, यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी भी ये सोच रहे हैं, सो इफ आई सेड समथिंग या एनीथिंग टू बोथ ऑफ देम, surely they will both listen and the prisoners will listen. But Yusuf did not rush. बल, rather या instead, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बल्कि, बल्कि उन्होंने क्या कहा, उखबिरु. उखबिरु का क्या मतलब है, I will inform, I will inform, मैं उनको खबर करूंगा. ये अब कौन सा है, फॉर्म 4 है. अखबरा युखबिरु. शमीम पूछ रही थी कि फॉर्म 4 बता दें. ये अखबरा जो भी अह से शुरू होता है ना, मैंने बताया था अखबरा युखबिरु, और इसका असल वर्ड क्या, खबरा. खबरा क्या होता है, इन्फॉर्म करना. तो खबर, अखबरा युखबिरु फॉर्म 4 है. तो आई, वो कहते हैं अना उखबिरु, आई विल इन्फॉर्म कुमा. कुमा का क्या मतलब है, बोथ ऑफ देम. उन्होंने कहा आई विल इन्फॉर्म बोथ ऑफ यू. कुमा, हुमा नहीं है, कुमा है. आई विल इन्फॉर्म बोथ ऑफ यू रुया, यानी बितावील रुया, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम. अब क्या हुआ, बल क़ाल लहुमा, ये शायद मैंने मिस कर दिया था, बल क़ाल लहुमा, सो ही सेड टू बोथ ऑफ देम, बल्कि उन्होंने उन दोनों से कहा, अना उखबिरुकुमा, मैं आप दोनों को इन्फॉर्म करूंगा, बितावील रुया, ख्वाब की इंटरप्रिटेशन के बारे में, कबला, इससे पहले के, यानी बिफोर, क्या होगा, यतियाकुमा. अन है इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया था, यतिकुमा नहीं यतियाकुमा है, बिकॉज जब अन आया तो अन के बाद यतिया हो जाएगा, यति नहीं होगा. अदरवाइज यति है करेक्ट, लेकिन अन की वजह से यतिया. इससे पहले कि आए आप दोनों के पास, तो आमकुमा, आप दोनों का खाना, तो आमकुमा, ठीक है ना. इसको अब इंग्लिश में बताती हूँ. रादर यानी बल्कि, he said to both of them, I will inform both of you the interpretation of the dreams before the food, before your food. तो आमुकुमा, आप दोनों का food comes to both of you. हो गया क्लियर. उसके बाद है फजलसा वतमअन्ना. अब ये जलसा नहीं है, जलसा है, ठीक है. जलसा, उसका क्या मतलब है, जलसा का मतलब है he sat, जलसा both of them sat. अब क्या हुआ, वतमअन्ना. वतमअन्ना जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना इत्मीनान, मुतमइन. तो अत्मअन्ना का मतलब है बोथ ऑफ देम वर. वतमअन्ना का मतलब है इत्मअन्ना. इत्मअन्ना का मतलब है दे वर बोथ कंटेंट. अलिफ की वजह से दोनों का हो गया फजलसा. सो फ का मतलब है सो, जलसा, दे बोथ सैट डाउन एंड दे वर बोथ कंटेंट. वो दोनों बैठ गए और वो दोनों मुतमइन हो गए. कितना टाइम रह गया, कोई एक पढ़ ले, अभी थोड़ा सा बस, बाकी 2 लाइनें हैं. कौन पढ़ना चाहेगा, मैं पढ़ूं. पढ़ लीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. काला यूसुफ, तुम काला, का, हाँ जी, तुम काला, काला,
قال يوسف ذلكما مما علمني नहीं رب नहीं, यहाँ पर नहीं है हम इरशादा, आप कहाँ चली गई हैं, बहुत आगे चली गई हैं. सुम्मा क़ाल लहुमा यूसुफु, और कोई पढ़ना? ثم قال لهما يوسف हाँ, أنا عالم بتأويل الرؤيا ذلكما مما علمني ربي. इरशादा एक मिनट प्लीज, आप इसको देखें. आपने कहा अन्ना, अन्ना डिफरेंट चीज है और अना डिफरेंट चीज है. ये आप प्लीज घर जाके पढ़ा करें इसको. अना आलिमुन का क्या मतलब है? अन्ना डिफरेंट चीज है और अना डिफरेंट चीज है. अना आप शुरू से पढ़ चुके हैं. अना क्या चीज होता है? अना का क्या मतलब? أنا मैं अना आलिमुन, मैं أنا عالم بتأويل الرؤيا. क्या मतलब हुआ? मैं इस ख्वाब की ताबीर के लिए जानती हूँ, आलिम हूँ. जानती नहीं हूँ, जानता हूँ. यूसुफ अलैहिस्सलाम मैं आलिम हूँ, मैं जानता हूँ. ठीक है, जानता हूँ. मैं आलिम हूँ. ज़ालिकुमा मिम्मा अलमनी रब्बी. रबिया अलमनी डिफरेंट चीज होती है, अल्लमनी डिफरेंट चीज होती है. आप लोग अरबिक में एक शब्द या एक कसरा फतह का फर्क करेंगे, मतलब पूरा चेंज हो जाता है. ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी. अल्लमनी रब्बी. ज़ालिकुमा क्या होता है? इस तरह. ज़ालिका ज़ालिका वो इस तरह. अच्छा चलें आप पढ़ लें, बस मैं आगे करती हूँ. ज़ालिकुमा मिम्मा अलमनी रब्बिया फफरिहा बतमाना महुन्ना वजद यूसुफुल फुरसता फबदा मौइज़त. ओके, अरशादा मेरी बात का नाराज नहीं होइएगा प्लीज, लेकिन आपकी अरबिक जो है ना पढ़ने की बहुत ज्यादा इसमें आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है. कुरान की यहाँ तो आप पढ़ लेती हैं, ठीक है जो भी, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं इसमें. अब आपने कहा वह हुन्ना अलग चीज होती है, होना अलग चीज होती है, ठीक है ना. और फिर इसी तरह फबदा अलग चीज होती है और फबद अलग चीज होती है. मौइज़तहु है, ठीक है, ये भी याद रखिए. चलिए अब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि टाइम अब हमारे पास 15 मिनट रह गए. सुम्मा क़ाल, यहाँ से था ना. सुम्मा क़ाल लहुमा यूसुफु. सुम्मा का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए. सुम्मा का क्या मतलब है? Then. इंडीड नहीं है, सिर्फ देन. काला का क्या मतलब है? कहना. काला He का said. said. So Awesome. summa qala, then he said lahuma. उनसे कह दिया. To them. Then both of them. एक याद रखिए, टू देम नहीं, टू बोथ ऑफ देम. याद रखिए, अगर आप लहुमा, अगर आप एग्जाम में अगर समझिए आप लिखेंगी और आप ये कह देंगे देम, वो गलत हो जाएगी. बोथ ऑफ देम. अच्छा, बोथ ऑफ देम लहुमा है, ठीक है. आप लोग अब बोले मत, खाली सुन लीजिए. सुम्मा क़ाल लहुमा, सो ही सेड टू बोथ ऑफ देम यूसुफु. अब यूसुफु है, उसका मतलब यूसुफ ने कहा. अब इसका मतलब पूरा सेंटेंस हो गया, देन यूसुफ सेड टू बोथ ऑफ देम. सुम्मा क़ाल लहुमा यूसुफु है, यूसुफा नहीं है, ठीक है ना. और वैसे भी लहुमा है, दो लोगों को बोल रहे हैं. कौन बोल रहे हैं? यूसुफु. यूसुफ इज द सब्जेक्ट, यूसुफ खुद बोल रहे हैं, फाइल वो खुद ही हैं. सुम्मा क़ाल लहुमा यूसुफु, देन यूसुफ सेड टू बोथ ऑफ देम. फिर यूसुफ ने उन दोनों से कहा, ठीक है. जो उर्दू लिख रहे, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से कहा. अना आलिमुन, अन्ना नहीं अना. अना का मतलब है मैं, आई. आलिमुन आलिम, आलिम का मतलब क्या है? जिसको नॉलेज है. आलिमन, और फिर आलिमुन, मैं आलिम हूँ यानी मुझे नॉलेज है. बितावील रुया, यानी कि इस मतलब ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन, ख्वाबों की ताबीर, ख्वाबों की जो तावील है, वो मैं उसमें नॉलेजेबल हूँ, मैं उसमें आलिम हूँ. अना आलिमुन बितावील रुया, I am knowledgeable in the interpretation of dreams. I am knowledgeable in the interpretation of dreams. फिर कुरान में से ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी. ज़ालिकुमा, अब ज़ालिकुमा आपने नहीं पढ़ा था, आपने ज़ालिका पढ़ा था, ठीक है ना. ज़ालिका सेम चीज है जो ज़ालिकुमा है. अगर आप दो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को कोई बात बता रहे हैं, तो आप ज़ालिका के बदले ज़ालिकुमा कह सकते हैं.
اور اگر 2 سے زیادہ تو ذالکم آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیم چیز ہے, ذالکا, ذالکم, ذالکما اور ذالکم. ایڈریسنگ 2 people آپ کہہ سکتے ہیں ذالکما. when you are addressing more than 2 people آپ ذالکم کہہ سکتے ہیں. ہے وہی مطلب that. ذالکم کا, ذالکا, ذالک سب کا مطلب ہے that. اب جو لفظ ہے مما, مما کا کیا مطلب ہے؟ from what. from what. min plus ma. min plus ma. mimma, that is from what allamani. علمنی اگین فارم 2 ہے, فعلا نہیں ہے, یہ فعلا ہے. علمنی, اس لیے میں نے کہا شدہ کو چھوڑے مت. علمنی, علمنی کا مطلب ہے has taught us, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے, علمنی ربی, جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. فارم 2 آف علمہ کیا بن جائے گا؟ علمہ. علمنی, تو جو مجھے اللہ, میرے رب نے مجھے سکھایا ہے, اس میں سے یہ علم ہے. یہ علم جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. اب انگلش میں بتاتی ہوں. Then Yusuf said to both of them, I am knowledgeable in the interpretation of dreams, and that is from what has taught me my Lord. اور یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. ففرحا وطمأنا, یا پڑھ چکے ہیں ففرحا, لیکن یہ فرحا کے مطلب فرحا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں الف ہے. So they were both happy. فرحا کا مطلب ہے he was happy, اور فرحت کا مطلب ہے she was happy. فرحا کا مطلب ہے so they were both happy. وطمأنا, again الف آیا ہے, and they were both content. اطمینان ہو گیا, دونوں خوش ہوئے اور دونوں مطمئن ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ ہونا, اینڈ اب ہونا کا کیا مطلب ہے؟ ہونا تو آپ سب کو آتا ہے, یہ شروع میں ہی پڑھا تھا. ہونا کیا ہوتا ہے؟ Here. ہیئر. ویری گڈ. ہونا کا مطلب ہے تو ہونا اینڈ ہیئر. اب یہ ہیئر بالکل ٹھیک ہے, اینڈ ہیئر یعنی اس وقت اس جگہ پہ. ہیئر یہاں پر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ وجدہ. وجدہ کا کیا مطلب ہے؟ فاؤنڈ. ہاں, فاؤنڈ, پایا, ان کو ملا. وجدہ یوسف, یوسف فاؤنڈ. یوسف علیہ السلام کو ملا, یوسف علیہ السلام نے پایا. کیا پایا؟ فرصتہ. فرصتہ کا کیا مطلب ہے؟ اردو کی فرصت نہیں ہے. اردو کی فرصت کہتے ہیں خالی وقت جب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, فرصت, ہمیں فرصت ہے, ہمیں خالی وقت ہے. عربک میں جو فرصہ ہوتا ہے, فرصتہ کا مطلب ہے چانس, اپرچونٹی, اس کو اردو ہم کہتے ہیں موقع. کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے موقع پایا. کس چیز کا موقع پایا؟ ان کو موقع ملا, انہوں نے موقع پایا. بدا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو سٹارٹ کرنا. اسی لیے بدعت جو ہوتی ہے, بدا, وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے, ہم کسی چیز کو سٹارٹ کر دیتے ہیں, نئی چیز کو دین میں انکلوڈ کر دیں. لیکن بدا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, اس کو سٹارٹ کیا. فبدا ہم کہتے ہیں نا ابتدا, اردو میں بھی کہتے ہیں ابتدا, یعنی کسی چیز کو شروع کرنا. تو انہوں نے بدا, ہی سٹارٹڈ, ہی بگین. تو یوسف علیہ السلام کو موقع ملا اور انہوں نے کیا سٹارٹ کیا؟ موعظتہ, انہوں نے اپنا واز یا اپنا سرمن یا اپنی پریچنگ یا اپنی ایڈمونیشن, واز و نصیحت انہوں نے شروع کی. وہنا, اب میں انگلش میں بتا دوں, وہنا اینڈ ہیئر وجد یوسف, یوسف فاؤنڈ الفرصتہ, مطلب یوسف الفرصتہ, الفرصتہ کا مطلب ہے اپرچونٹی یا چانس, and here Yusuf found the chance or the opportunity. فبدأ, so he began or he started موعظتہ, his preaching یا his sermon یا his admonition. اب تو بہت کم ٹائم رہ گیا, اور یہ ذرا لمبا لگ رہا ہے. 11 کافی لمبا ہے, ختم نہیں ہوگا, بہت تھوڑا سا پڑھا جائے گا. میرا خیال ہے یہیں پر رک جائیں. کافی بھاری ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے, حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ اب جتنا پڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگ, الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ خود سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. لیکن ذرا سا آپ لوگ گھر جا کے بھی پلیز دھیان دیا کریں, اس کو دوبارہ سے پڑھا کریں جس طرح میں کہہ رہی ہوں, اور قرآن بھی جب پڑھ رہے ہوں تو اس میں دیکھیں. الحمدللہ بہتر تو ہوتے جا رہے ہیں, الحمدللہ سیکھ بھی رہے ہیں. کیا آپ لوگ سیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگ بہتر ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ مجھے دیں, اپنا فیڈ بیک دیں. ہر بندی مجھے اپنا فیڈ بیک دیں. ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ابھی ہمارے پاس 9 منٹ 8 منٹ باقی ہیں. شمیم آپ بتائیے. بہت سیکھ رہے ہیں, لیکن ہم لوگ تھوڑا, I mean, especially I can talk about myself, کہ گھر پہ ذرا اور ٹائم مجھے اسپینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ دس لیسن کے لیے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا. I was like completely like blank. I was in the class today, تو تھوڑا سا اسی لیے ڈیفیکلٹی ہوئی, ورنہ
before every class I always kind of go over and try to understand और verb वगैरह find करती हूँ, लेकिन इस बार बिल्कुल ही time नहीं मिल सका मुझे. होते हैं, कोई कोई दिन पे सख्त होता है, कोई नरम होता है, किसी को काम का मौका मिलता है, नहीं मिलता है. सबा आप? जी मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं जैसे खुद से पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ लेती हूँ उसका पूरा एक जो उसका कंटेंट होता है वो मुझे समझ में भी आ जाता है और मैं पढ़ भी लेती हूँ. समझ आ जाता है, लेकिन एक एक लफ्ज को एग्जैक्टली हाँ, वो 1 by 1 में फिर मैं कंफ्यूज होती हूँ. जब मैं आप लोगों के साथ पढ़ती हूँ तो फिर मुझे मतलब बात में पूरी एक एक चीज बताना मुश्किल होती है. फिर आप हो जाता है ना, उसके बाद क्लास जाता है. जी, जब आप बताती हैं तो वो फौरन मेमोरी भी रिकॉल होती है और आई थिंक वो शमीम ने जो कहा वो सही है कि टाइम ही नहीं दे पा रहे उस तरह जिस तरह देना चाहिए है. अतिया आप? Auntie, for me, it's like the vocab. I think I need to do more focus or and I need to give more time also. The same thing they have the time I cannot give. That's the हाँ, बहुत सीखने को मिल रहा है, लेकिन I need to give more time, इंशाल्लाह. और कौन है? आरफा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सीख तो बहुत रही हूँ, टाइम भी दे रही हूँ, मगर कभी ग्रामर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी वजह से ट्रांसलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वरना वैसे टाइम दे रही हूँ, मैं खुद भी सीखने की कोशिश करती हूँ. आज थोड़ा मेरा माइक खराब हो रहा है, आपकी आवाज थोड़ी रुक के आ रही है, तो मुझे जरा बताइए कि आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है क्लास, मतलब अच्छा तो लग जी रहा है क्लास में ना? जी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है. इरशादा, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है. इरशादा जी अल्हम्दुलिल्लाह. जी जी ये आपको सीखने को मिल रहा है? जी जी मुझे बहुत शौक था. मैंने ही पहले आपको उस साल बताया कि हम चाहते हैं कि अरबिक का. शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा खैर दे. अभी एक और कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं भी कोई पीछे बात नहीं, हूँ. हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा. आप घर में भी प्रैक्टिस किया करें. ये एक और जी मुझे ये चाहे जी डिक्शनरी मुझे चाहे कौन सी लानी है, मुझे मेरे पास नहीं है. कि आपने पूछा था, लेकिन मैंने आपको बताया चूंकि आप उर्दू में करती हैं ना, तो ये डिक्शनरी इंग्लिश की है जो मैंने हैंड्स वर्ड की बताई है. आपको ये फायदा नहीं देगी. आप उर्दू की डिक्शनरी कोई अच्छी सी ढूंढ के देखें. आप बताइए कौन सी लाऊंगी. मैं लोगों से पूछूंगी क्योंकि मेरे पास नहीं है. अगर दोनों चीजें होंगे, इंग्लिश भी होगा उर्दू भी होगा, वो नहीं ऐसी ऐसी नहीं होगी. शायद आपको इंग्लिश की ढूंढने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, वो इतना आसान नहीं है. अच्छा, फिर मुझे अब बताइए फिर उर्दू कौन सी मैं इंशाल्लाह लाऊं. जो उर्दू पढ़ाते हैं उन लोगों से पूछ के इंशाल्लाह बताऊंगी. मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पूछ के अच्छा. बताऊंगी. चलिए, ये एक और मुझे नाम नहीं दिख रहा है, आईफोन लिखा हुआ आ रहा है. कौन है प्लीज आइडेंटिफाई कर लें, और आपको समझ आ रही है, कैसा लग रहा है, अपना नाम भी बता दीजिए. आईफोन सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा है. जिन लोगों से मैं बात कर चुकी हूँ उनके अलावा कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत. जी फरहत, बोलिए. नहीं, बस आप पूछ रही थी कि और कौन है, तो मैंने सोचा शायद मैं ही होंगी, मेरा नाम नहीं आ रहा होगा. जी फरहत, आप कौन सी फरहत हैं? फरहत बिलवानी. ओए बिलवानी हो, या अल्लाह, जी. कितनी बदली हुई है. सॉरी फरहत. फरहत से तो नहीं नहीं, बात होती है, सॉरी. मेरी हर वक्त बात होती है फरहत से. फरहत मेरी बहुत क्लोज है और हर वक्त मेरी इनसे बात होती है, लेकिन हम लोग चूंकि फोन पे बात करते हैं तो आज ये मुझे इस पे बात पहली दफा शायद कर रही है. अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर. आज तो मुझे सजदे करने चाहिए, सजदा शुक्र. अल्लाह प्लीज नहीं ना, मैं इसलिए बोलती नहीं हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है ऐसी बातें सुन के. प्लीज ऐसे नहीं कहें आप, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके मुकाबले में. आप आपको बता दूं, प्लीज सब ऐसी ये कहेंगी कि देखा आपने मुझे कहा इस तरह, इसलिए मैं क्लास में नहीं आती हूँ. प्लीज फरहत, माफी चाहती हूँ, लेकिन आप क्लास में आती है तो मेरा खून बढ़ जाता है, मैं बाग बाग हो जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर. जाती हूँ. मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए कि you are अल्हम्दुलिल्लाह. Farhat was the one who started. अब ये कहेंगे आप मेरी तारीफ ना करें, लेकिन she was the one who started, who was dynamic, जिनके फरहत ने और अलीम भाई ने, इनके हस्बैंड ने, इन्होंने शेख मुस्तफ़ा को कहा था 5 साल पहले हमें उर्दू में क्लासेस चाहिए और कोई बताएं, और शेख मुस्तफ़ा ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने यही कहा था कि अलीम बिलवानी एंड हिज वाइफ दे वांट मी नहीं, उन्होंने कहा कि कोई पढ़ाएं. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लफ्ज का अजर इंशाल्लाह इनको मिल रहा है. प्लस फरहत जो है वेबसाइट को भी मैनेज करती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं. जितने भी फ्लायर्स हैं वही बनाती हैं, सब कुछ वही करती हैं. तो फरहत जज़ाकल्लाह खैर, आपका क्लास में आने का मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. वही आकी नाम लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह.
अपना नाम यहाँ पर लिखो ताकि मुझे पता चले कि फरहत है, छुप के नहीं आओ। यही अच्छा है मेरे लिए, मैं चुप के ही करना चाहती हूँ कोई और प्लीज। नहीं होगा तो मैं फरहत फरहत करके बात करती रहूंगी। ठीक है फरहत छुपी इंशाल्लाह। रुस्तम है। सब लोग फरहत को दुआएं दें और सब लोग फरहत से इंसिस्ट करें कि वो क्लास में आए, क्योंकि जब ये नहीं आती है लोग मुझे कहते भी हैं कि फरहत क्यों नहीं आई। एक ये नहीं आती है, एक शायदा नहीं आती है, शेख मुस्तफ़ा की अम्मी वो भी नहीं आती, उनसे भी लोग गिला करते हैं। और आज तो पता नहीं नौरीन भी नहीं है, सबीहा भी नहीं है, नाहिद भी नहीं है। जो भी है कोई मजबूरी होगी, अल्लाह ताला उनको भी नेक्स्ट क्लास में ले आए इंशाल्लाह ताला। तो कोई सवाल है? एक कमेंट है मेरे पास फरहत के लिए। अल्लाह इन्हें बहुत खुश रखे और इनके अजर में बेइंतहा इजाफा करे। लेकिन फरहत जो है वो छुपी रुस्तम है, शाये होती हैं, बस ना हो और आया करें और बोला भी करें। देखो फरहत, you have to take this seriously. सब चाह रही हैं कि And she knows me, this is सबा रफीकी। मैं इसलिए इस तरह कमेंट पास कर रही हूँ। मुझे जानती है तो सबको जानती है, समझ लें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। 4 महीने पहले अगर ये किताब हमारे सामने आती तो उसका 20% भी नहीं पढ़ सकते थे जितना अब पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, I wanted this, क्योंकि आप लोगों ने अरबिक 1 पढ़ा, आप लोगों ने अरबिक 2 पढ़ा, आप लोग अब अरबिक 3 में आप लोगों ने रूल्स नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐड हो रहा है। आज भी क्या ऐड हुआ? लव ऐड हो गया। आज भी और कौन सा ऐड? ऐसे एक एक लफ्ज कभी कभी ऐड हो जाए। हाँ, रिवाइज हुआ हमारा वो रिवाइज हुआ ना, लैसकाना या रिवाइज तो बहुत चीजें हो रही हैं, लेकिन असल चीज ये कि कुछ नए 1-2 रूल्स भी आप लोग हर रोज कोई ना कोई एक रूल आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी वो कैब बढ़ रही है, आपके रूल्स बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। तो जब हम अरबिक 3 अभी ये वाला खत्म करेंगे और जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, शेख मुस्तफ़ा से कहा हुआ है कि वो मुझे फॉर्म्स के जो नोट्स हैं, मेरे अपने नोट्स हैं, लेकिन मैंने उनको बार बार याद दिला रही हूँ और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह जो उनके नोट्स हैं वो मुझे भेजेंगे, वो अभी उनके कंप्लीट नहीं है। तो देखें, दुआ करें इंशाल्लाह। आज हमारा लेसन 10 खत्म हो गया और इंशाल्लाह हम लोग जब तक ये इंशाल्लाह करते रहेंगे, हमारा जब तक ये खत्म होगा, जब तक वो मुझे नोट्स भेज देंगे इंशाल्लाह, फिर हमारा नेक्स्ट कोर्स जो होगा अरबिक का, दैट विल बी वर्ब फॉर्म्स इंशाल्लाह। फिर आप सब और ज्यादा खुश हो जाएंगे। थोड़ा मुश्किल भी होगा लेकिन खुश हो जाएंगे, क्योंकि रोज जो मैं फॉर्म 4 और फॉर्म 2 और करती रहती हूँ, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। चलें भाई, दुआ में प्लीज याद रखें सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। जी बोलिए। मेरी बहन बोलती है ये जो फातिहा पढ़ते हैं ना, ये हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके लिए पढ़ सकेंगे कि ये जायज है कि नहीं? हम फातिहा किसी के लिए भी नहीं पढ़ते हैं, याद रखिए। हम ये जो कहते हैं ना कि 1 दफा अल्हम्द और 3 दफा कुल, ये फातिहा का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। फिर क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? फौत हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उनके लिए जो जनाजे की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू भी है और अल्लाहुम्मा अरहम, 2-3 दुआएं हैं जनाजे की। जब हम पढ़ते हैं जनाजे की नमाज में जो दुआ पढ़ते हैं, बस वो दुआ पढ़ें, और वो हर वक्त पढ़ने का। ये नहीं कि आप 1 साल के बाद पढ़ें। जब आपको मैंने बता दिया कि बरसी कोई चीज नहीं होती है इस्लाम में। देयर इज नथिंग एज बरसी, देयर इज नथिंग एज 40वां, देयर इज नथिंग एज 20वां, 10वां, जुमेरातें, कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये सब याद रखें। ये सब लोगों की घड़ी हुई हैं, लोगों की चीजें हैं, फैब्रिकेटेड हैं। आप इन पे ना जाएं। जो फौत हो चुके हैं उनके लिए हर वक्त उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला, जैसे मैं कहती हूँ, अल्लाह जितने लोग हमसे पहले, जो मुसलमान मुस्लिमीन मुस्लिमात मुझसे पहले तेरे पास जा चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ है। और जो मेरे साथ हैं और जो मेरे बाद आएंगे, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। ये मेरी रोज की दुआ है, एवरी डे की दुआ है। तो आप इतने लोगों के लिए आप दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, अल्लाह ताला आपकी भी मग़फ़िरत करेगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Assalamualaikum warahmatullahi व बरकातहू।